लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी और बयानबाजी में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। पोप ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले मानवता के प्रति अपराध हैं। पोप लियो ने जिहादी हिंसा के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों पर स्पष्ट जिक्र करते हुए पूरी दुनिया से शांति और न्याय की अपील की। पोप ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले मानवता के प्रति अपराध हैं। Here I would especially call to mind the many victims of violence, including religiously motivated violence in Bangladesh, in the Sahel region, and in Nigeria, as well as those of the serious terrorist attack last June on the parish of St. Elias in Damascus. Nor do I forget the victims of jihadist violence in Cabo Delgado, Mozambique. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली को धमकी देने पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भड़क गई है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या हमें अमेरिका से मिलिट्री बेस खाली करवा लेना चाहिए या इटली में मैकडोनाल्ड्स KFC पर हमला बोल देना चाहिए। Sbagliata questa strategia, allora mi si deve formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO, dobbiamo chiudere le basi americane, dobbiamo rompere i rapporti commerciali, dobbiamo assaltare i McDonald's, non lo so. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Altrimenti, chiaramente. जॉर्जिया मेलोनी ने पूरी घटनाक्रम पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि अब यूरोप को रूस से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन शायद अब ऐसा करना चाहिए। Penso che però Macron abbia ragione su questo. Cioè io credo che sia arrivato il momento in cui anche l'Europa parli con la Russia, perché se l'Europa decide di partecipare a questa fase di negoziazioni parlando solo con una delle due parti in campo, temo che alla fine vedrà diciamo il contributo positivo che può portare sia limitato. Dopodiché però dov'è il problema di questo? Il problema di questo è chi lo deve fare, perché se noi facessimo l'errore di diciamo decidere da una parte di riaprire le interlocuzioni con la Russia e dall'altra di andare in ordine sparso mentre lo facciamo, noi faremo un favore a Putin. E l'ultima cosa che voglio fare io nella vita è un favore a Putin. Noi abbiamo avuto questo problema dall'inizio. फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हिदायत दी है। मैक्रों ने कहा है कि भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश किसी के जागीरदार नहीं बनना चाहते हैं। इन देशों की संप्रभुता का पूरा सम्मान करना होगा। Treaty that was signed in 2010 in India, and it brings together India, Indonesia, Australia and other players who are unprecedented partners when it comes to defense, when it comes to security, to AI, in the field of economy, in the field of climate change and the transition. These are solid partners. Celle d'ailleurs qui avant même ces dérèglements a dit aux uns aux autres, nous ne And our policies with these partners in the Asia-Pacific region is very important. These are players who said that they did not want to be the vassals of other players. So we need to respect sovereignty and do so by creating new alliances. If you look at the figures, they speak for themselves. This is working. So please involve yourself in this strategy. It needs to be consolidated. Third element, we need to build a new partnership, a partnership in the Mediterranean basin. न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के उमर खालिद पर दिए गए बयान को भारत विदेश मंत्रालय ने गैर जरूरी बताया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम अपेक्षा करते हैं कि सार्वजनिक पदों पर बैठे प्रतिनिधि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करें। जायसवाल ने कहा है कि ऐसे बयानों के बजाय बेहतर होगा कि वे जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। On the issue of comments made by the Mayor of New York, we expect public representatives to be respectful of the independence of judiciary in other democracies. Expressing personal prejudices do not behove those in office. Instead of such comments, it would be better to focus on the responsibilities entrusted to them.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि हम एक अत्यंत उन्नत सभ्यता थे। हमने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े, नहीं तब किसी विदेशी पर हमला किया जब दुनिया कमजोर थी। डोभाल ने कहा है कि हम अपनी सुरक्षा के खतरों को समझने में चूक गए हैं और इतिहास ने हमें इसका सबक सिखाया। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। जेएनयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री पंडित ने यूनिवर्सिटी में लगी नारों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ नारे लगाए गए थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने 24 घंटे के भीतर स्थिति को संभाल लिया। हर विश्वविद्यालय में कुछ सनकी लोग होते हैं और ये इस विश्वविद्यालय की विशेषता नहीं है। And sir, you will know how peaceful we are. And we are also India's most nationalist university. ये भी मैं बताना चाहती हूँ, because 2 days back, again the slogans came up because there is a lunatic fringe in every university. पागल रहते हैं, और उस पागल don't define the character of this university. Every army chief, every naval chief, every air chief is a JNU alumnus, if you know. NBA, IMA, CME are JNU institutions. Sir, DRDO, आप ऑपरेशन सिंदूर पे इतना गर्व कर रही है ना, वो आत्मनिर्भर सब JNU का इंस्टीट्यूट है। सब साइंटिस्ट हमारे PhD लिए हैं। So let me tell you, see this positive side and encourage this 90%. And let me tell you, I thank all my staff, students and faculty that within 24 hours JNU bounced back and proved that this narrative does not belong to Jawaharlal Nehru University, which is Government of India's best and topmost university. यहाँ गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए from 15 states of India. 10 और 20 रुपए आज भी फीस है यहाँ. So let me tell you, even taxpayers' money comes into Jawaharlal Nehru University. And we don't discriminate. We believe in the diversity and unity of Bharat Mata. Jai Hind, Vande Mataram. राजस्थान के पोखरण से बीजेपी विधायक महंत प्रतापपुरी ने आरोप लगाया है कि कुछ असामाजिक तत्व गौमांस परोसकर हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विधायक ने गौमाता की रक्षा के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। और इतना घिनौना कृत्य कर रहे थे। ये अवैध तो बूचड़खाने चलाते हैं और वहाँ दिखने के लिए पशु दूसरा रखते हैं, ला करके गौ माता को काट करके और हमारा धर्म भ्रष्ट करते हैं। और जो हमारे पर्यटक आते हैं, चाहे सम में आते हैं, चाहे जैसलमेर में आते हैं, चाहे तनोट आते हैं, चाहे रामदेरा आते हैं, उनके खाने में भी ये लोग इस प्रकार से घिनौनी हरकतें करते होंगे। इसलिए ये निंदनीय है और बहुत कुकृत्य किया है। परंतु ये तो गौ माता जाते जाते हमें जगा गई है और निश्चय ही इन पर कठोर कार्रवाई, जो कानून की धारा में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। उन्होंने इस प्रकार के कृत्य करके जो संपत्ति इकट्ठी की है, अवैध काम कर रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी। इस बीच पोखरण से कथित अवैध बूचड़खाने और गौ हत्या के मामले पर बीजेपी विधायक स्वरूप सिंह खारा के बयान पर कांग्रेस सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बाड़मेर के लोग किस तरह रहेंगे, यह न स्वरूप सिंह खारा तय करेंगे और न ही भाजपा। यह फैसला बाड़मेर की जनता खुद करेगी। सांसद ने कहा है कि यह क्षेत्र हमेशा से भाईचारे, आपसी सौहार्द और मेलजोल का प्रतीक रहा है और कोई कितना भी प्रयास कर ले, भाईचारे को बिगाड़ने की साजिशें कभी सफल नहीं होगी।
बाड़मेर से भाजपा के नेता स्वरूप सिंह भैया उन्होंने खुली चुनौती भी दी है कि यहाँ अगर रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। देखिए, बाड़मेर किसके हिसाब से क्या रहना है वो कोई स्वरूप सिंह या बीजेपी तय नहीं करती, ये बाड़मेर के लोग तय करेंगे। और बाड़मेर हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है, शांतिप्रिय इलाका रहा है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, आपसी पड़ोसी भाई की तरह रहते हैं। और ये भाईचारे का प्रतीक रहा है, शांति का प्रतीक रहा है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी कोई कितनी लाख कोशिश कर ले, लेकिन उनकी जो मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। भाजपा नेता का ये भी आरोप है कि यहाँ पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। देखिए, भाजपा नेताओं ने पहले भी 2 बार ये ऐसी नाकाम कोशिश की है। मैंने बता रहा हूँ कि अशांति फैलाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की जनता जागरूक है, लोग समझदार हैं, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे। और लोग पहले भी आपस में मिलजुल कर रहे हैं और आगे भी मिलजुल कर रहेंगे। राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेज रफ्तार ऑडी कार से 15 लोगों को कुचलने की घटना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही का नतीजा है। खाचरियावास ने पुलिस को चौथ वसूली और ऑनलाइन चालान की मशीन बताया, जहां गरीबों को लूटा जा रहा है, लेकिन रसूखदार अपराधी बच रहे हैं। 15 से ज्यादा लोगों को ट्रक कुचलकर चला गया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज तक सड़कें जो सड़क चौड़ी हो सकती है उस चौड़ी नहीं हो पाई, और ट्रैफिक पुलिस और पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। यही कारण है कि कल वापस ऑडी कार ने 15 लोगों को टक्कर मारी। कहां है हमारी पुलिस? ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चौथ वसूली करने का नहीं है। जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने का काम राजस्थान की सरकार का। सारे रास्ते जाम है, सब तरफ लोग जाम में फंसे हुए हैं। लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, ऑफिस नहीं पहुंच सकते, स्कूल और कॉलेज टाइम पर बच्चे नहीं पहुंच सकते, एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम पर कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारी सरकार को, हमारी पुलिस को, हमारी ट्रैफिक पुलिस को ना तो ट्रैफिक क्लियर करना है ना एक्सीडेंट रोकने। आज भी राजस्थान रोड एक्सीडेंट में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मौत राजस्थान में हो रही है। इसके बावजूद कोई सबक नहीं लिया। राजधानी जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। राजधानी जयपुर, आप ये मानकर चलना, बीजेपी के भरोसे नहीं है, सिर्फ भगवान के भरोसे है। कोई यदि सड़क पर निकल गया, बच गया, भगवान के भरोसे तो ठीक है, बाकी बीजेपी के भरोसे यदि कोई सुरक्षित है तो बीजेपी सरकार में बैठे हुए लोग सुरक्षित हैं। इन सब मामलों को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं सरकार से कहूंगा कि परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस कार टैक्सियों के ऊपर से कैरियर काटने में लगा हुआ है। कारें भाग रही है बेचारी, उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऑनलाइन चालान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आम आदमी दुखी और परेशान है। लोगों की कार, जीप, स्कूटर, मोटरसाइकिल चालान के नाम पर उठाकर ले जाते हैं। 10-10 ऑनलाइन चालान एक दिन में आ रहे हैं। आप ये सब चालान भी कर रहे हो और लोगों को सड़क पे कुचलकर मार भी रहे हो, तो ये आप चालान क्यों कर रहे हो जब आप ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते? तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। सरकार से भरोसा उठ गया। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग। समाजवादी पार्टी ने फर्जी वोटिंग के खिलाफ एफआईआर का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि अगर चुनाव आयोग भाजपा नेताओं के साथ मिलकर फर्जी या डबल वोट बनवाएगा तो हर दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे। कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.